we're shifting our focus to some breaking news that's coming in. Hardik Patel's stinging attack on the Congress party, saying the Congress is hurting the sentiments of Hindus. After he quit from the Congress party, Hardik Patel's attack on the Congress party, saying it is hurting the sentiments of Hindus. He said, I've said this earlier as well, the Congress party workers are hurting the sentiments of people in the country, trying to damage the faith of Hindu religion. Today, the former Union Minister and Gujarat Congress leader had made a statement that dogs urinate on the bricks of Ram Temple. A very insulting statement that had been made from the Congress leader. Hardik Patel now saying that this is a vindication of what I've said before. Amit Rajput joins us over the phone line with more details on this. Amit, Hardik Patel, when he quit from the Congress party, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज इंसल्टिंग हिंदूज, और अब ये जो स्टेटमेंट आया है कांग्रेस लीडर की तरफ से, हार्दिक पटेल सेइंग कि हाँ यही है जो मैं, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज अ विंडिकेशन ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग. कल है पटियाला में ना Amit? Hello? Amit, this statement that is coming from Hardik Patel, he's saying that this is exactly what I was talking about, an insult to the Hindu faith from the Congress leader. All right, we'll get that reaction and more information on that. But after a Congress leader insulted Hindus, Hardik Patel now taking on the Congress leader, saying this is what I was talking about while quitting from the Congress party as well. Remember, he had cited this as one of the reasons, saying for the sake of it, the Congress party is opposing the centre. They are not in touch with what's happening in the country. They have been insulting the Hindu faiths time and again. After a provocative and insulting statement had been made by a Congress leader, now Hardik Patel saying this is the stance that I spoke about. This is what the Congress party stands for. In fact, after the Gujarat Congress leader made a statement insulting Hindus and the Ram Temple, there has been no statement of condemnation that has come in from any of the Congress leaders. Shehzad Poonawalla of the BJP with us on the phone line. Shehzad, Hardik Patel now saying this is what the Congress party stands for after the insulting and unacceptable remark by the Gujarat Congress leader. You see, the Congress party does not believe in Ram Sanskriti, it believes in Rome Sanskriti. And therefore, time and again, the Congress party insults Hindus. This is the party that questioned the existence of Lord Ram. They stole the Ram Mandir. Today, the manner in which the Gujarat Congress leader has said that there is urination being done by dogs on the eat or the bricks of Ram Mandir. This shows the mindset of the Congress. Rahul Gandhi wears the Janu on top of his coat. He says he's a Shiv Bhakt. He goes to temples during election time. But on the other times for Tushtikaran ki Rajniti, they abuse and insult Hindus. They call Hindutva as terror. Absolutely. Shehzad, thank you for joining us. The BJP questioning the Congress leader for his statement. Amit Rajput also joins us. He's back on the line with us. Amit, if you can give us any details of the statement that he made. Any word of condemnation किसी कांग्रेस लीडर ने इसके खिलाफ बात किया है? बिल्कुल, हार्दिक पटेल ने जो ये कहा है और ये पूरा जो उनका निशाना है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सोलंकी पे उन्होंने ये निशाना साधा है. आज गुजरात कांग्रेस का एक शिविर जो है, in fact, let's get in a word from the Congress. We have Udit Raj of the Congress party with us. Mr. Udit Raj, Hardik Patel saying the statement from the Gujarat Congress leader is exactly what I was talking about. Congress party insulting Hindus time and again. Then why was he in the Congress party? Then that means he was with he had in the company which insulted. So at that time, why didn't he leave on this issue? And of course, issue is an old issue. Then he should have not joined the Congress party. Okay. Does the Congress party condemn the statement that had been made by the leader on Ram Temple? One, and this is all nonsense. This is a false. There is nothing. Just he wants to appease BJP so that he gets the slot. Okay, but what do you have to say on the statement that has been made by the Congress leader? Do you condemn it? Is there any
action that is being taken against him because he insulted Ram Temple Hindus across the country. This is all baseless thing. Why should Congress reply? And Mr. Hardik Patel, when he was with us, he did not say it. Now he is saying so that he gets a plumb position in the BJP. And of course, in BJP, those who create venom are Hindu-Muslim, or they raise the religious issue, they are rewarded. He wants to reward. Okay. So he has said that this is a Gujarat Congress leader. Who is the leader? Was there any action taken against this leader? So why should there be there? It's a baseless thing. Why should there be any action against? It's all baseless. And what he was doing, if he is a follower of Ram, and then why did he remain in the party still for a long period? Okay, you're saying no such statement had been made? Yes, of course. It's a baseless. Baseless allegations. All right. Thank you for joining us, Mr. Udit Raj. Amit, coming back to you, Congress party की तरफ से जो reaction है, they are saying कि ऐसा कोई statement नहीं था. Hardik Patel is now leveling baseless allegations on the Congress party because he has quit the party. ये बिल्कुल जो उदित राज जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं. उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है या उन्होंने अभी जानकारी नहीं ली होगी. कांग्रेस का आज एक शिविर था अहमदाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पे. ओबीसी सम्मेलन था और उस ओबीसी सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के गुजरात के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सोलंकी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये स्टेटमेंट दिया है. उनका ये स्टेटमेंट है, ये साफ साफ उनका ये जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं उससे जो हार्दिक पटेल ने आज जो ट्वीट किया, स्वाभाविक तौर से हार्दिक पटेल इसी तरह के स्टेटमेंट्स को लेके कांग्रेस पार्टी के और इस तरह की नीति को लेके वो काफी समय से नाराज चल रहे थे. और आज stay on the line with us. We are now joined by Hardik Patel himself. Sir, आपने ये जो नेता के बारे में बोला है, इसके बारे में कुछ और विस्तार से बताएं. कौन है ये मंत्री, कब बोला गया, किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया? आज एक कार्यक्रम में गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भरत सिंह सोलंकी ने अपना बयान दिया कि भगवान राम का जो मंदिर बनने वाला है वहां जो ईंटें पड़ी है उस पर कुत्ते जाके पेशाब करते हैं. मैंने पहले भी इस बात को लेकर गहराई से कह चुका हूं और इसीलिए मैंने इस्तीफा भी दिया था कि गुजरात की कांग्रेस जनता की भावनाओं के साथ या जनहित के कामों के साथ जुड़ना ही नहीं चाहती. जब चाहे तब वो जनता के हितों के खिलाफ ही बयानबाजी करती रहती है और खास तौर पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ तो लगातार उसका खिलवाड़ जारी रहता है. आज जो स्टेटमेंट गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने दिया, उससे ये बात साबित हो गया है कि मैंने जो इस्तीफा दिया था वो सही तौर पर अब मुझे गर्व अपने आप में महसूस होता है कि जो कांग्रेस हिंदू विरोधी अपनी बातें लगातार बयानबाजी के जरिए लोगों के सामने रखती है, क्या गुनाह है. आज भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, उसके निर्माण के साथ सालों के बाद जो भावना कहीं ना कहीं दबी पड़ी थी उसको उजागर करके वहां मंदिर के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है. और ऐसे समय में भरत सिंह सोलंकी जैसे लोग जब स्टेटमेंट और बयानबाजी करते हैं तो उससे ये साबित हो गया है कि ये लोग हर दिन हर वक्त हिंदू विरोधी बयानबाजी करके पब्लिक के बीच में अपनी प्रस्तुति, अपनी अहमियत जो है उसको बिगाड़ने की जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ अपनी बयानबाजी करने में व्यस्त रहते. पर ये सर, ये कौन सी पब्लिक है जिसके सामने भरत सिंह सोलंकी जी अपनी इमेज चमकाना चाह रहे हैं ऐसे हिंदुओं की आस्था पर आउटरेजियस और इंसल्टिंग कमेंट्स करके? देखिए, ये है कि गुजरात जैसे प्रदेशों में जब आप भगवान राम के मंदिर पर अपनी मनमाजी भरे निवेदन करते हैं तो एक बात तो साफ होती है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को चमकाना चाहते हैं जो लोग सच में उन लोगों के साथ है भी नहीं. पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ऐसा निवेदन क्यों, ऐसी बयानबाजी क्यों. आप तो ऑलरेडी कोई ओबीसी समाज का कार्यक्रम था, उसी में आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा ही आपने बयानबाजी की है. उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि गुजरात की जनता आने वाले दिनों में ऐसी बयानबाजियों को मुंह तोड़ जवाब भी देगी और ऐसे लोगों को सत्ता में तो ठीक विपक्ष में रहने का भी अधिकार नहीं है गुजरात जैसे प्रदेश में. हार्दिक जी, जब आप पार्टी छोड़ के जा रहे थे तो आपने काफी कटु आलोचना की थी सीनियर लीडरशिप की अपनी पार्टी के.
ऐसे में जब एक नेता जो कि फॉर्मर उपाध्यक्ष रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, भरत सोलंकी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। देयर इज ऑल्सो राहुल गांधी, जो हम देखते हैं कि जैसे इलेक्शन आता है वो जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर दर्शन करने चले जाते हैं। अभी इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि इन भरत सोलंकी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाएगी? करनी चाहिए। अब मैं तो उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, करनी चाहिए ऐसे लोगों से बयान, ऐसे लोगों पर कार्रवाई, क्योंकि जो कार्यकर्ता बेचारा गांव में रहता है, ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है जब ऐसी परिस्थिति होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो अब जनता तो फैसला करेगी ही करेगी, लेकिन पार्टी को थोड़ी सी भी शर्म बची है गुजरात को लेकर, तो ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जी। बट जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जनता से कनेक्ट टूट रहा है। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हार्दिक पटेल. Let's once again listen in to the bite, the reaction that we have that has sparked all this outrage of former minister, no less, Bharat Solanki. We'll try and play out that bite of Bharat Solanki that has sparked all this outrage. Bharat Singh Solanki, remember, is a former president of Gujarat Pradesh Congress Committee. इनफैक्ट सोलंकी जी अब हमारे साथ खुद ही जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताइए कि आपका ये जो बयान था ये क्यों दिया गया? We will try and get in touch with him once again to understand what really was the thought process that went behind his outrageous derogatory comment. Amit Rajput now joins us on the phone line as well. Amit, we heard Hardik Patel there saying that while such statements have been made by the leaders, he expects action will be taken, but the chances of that happening seem bleak. देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये हार्दिक पटेल ने जब इस्तीफा दिया और अभी भी जब ये टाइम्स नेटवर्क के साथ बात कर रहे थे, हार्दिक पटेल ने स्पष्ट किया है कि ये जो नीतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जनाधार है उसको ठेस पहुंचती थी और जनता के बीच में भी उनकी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही थी। और उसी वजह से हार्दिक पटेल ने अपना पार्टी से इस्तीफा दिया और लगातार उनकी बात को सुन नहीं रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात हो या दिल्ली में बैठे हुए। एक बार रहिएगा हमारे साथ। इनफैक्ट आई विल नीड योर हेल्प। हम लोगों को वो बाइट मिल गई है भरत सिंह सोलंकी जी की, जहां पे वो ये सब रिमार्क्स कर रहे हैं। लेट्स लिसन इन वंस एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसलेट इट फॉर लेटर बिकॉज दिस इज इन गुजराती. એની પૂજા કરીને મોકલી અને જે પાદરે હતા આપણે જોયું હશે કે એના પર પેલા શ્વાન ये पण पेशाब करता अनेक जगह जोवा मिला। सिलाएं हमने भेजी यहाँ से, जो लोगों ने यहाँ से जो सिलाएं भेजी थी, उन सिलाओं के ऊपर जो पूजा करके यहाँ से भेजी गई सिलाएं थी, उनके ऊपर कुत्ते पेशाब कर रहे थे। ऐसे विजुअल्स भी, ऐसे दृश्य भी सामने आए थे। गामना पादरी तो किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं सोलंकी जब वो ये कह रहे हैं कि शिलाओं का ऐसा अपमान हो रहा है अकॉर्डिंग टू हिम? देखिए, ये जो भरत सोलंकी का ये जो स्टेटमेंट है, इसे साफ साफ कहा जा सकता है कि जब राम मंदिर का विवाद जब चल रहा था अयोध्या के अंदर, जब पूरे देश में से जो कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे जब सिलाएं पूजन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैं बताना चाहूंगा कि हुआ था, पूरे देश में से सिलाएं जो हैं राम मंदिर बनाने के लिए गई थी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ले गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले गए थे। और वो सिलाएं जब वहां पर मौजूद थी, जब ये विवाद चल रहा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर कि वहां पर क्या था, तो उस समय पे वो जो सिलाएं रखी गई थी वहां पे जो राम कार्यशाला थी, जो राम जन्मभूमि की न्यास कार्यशाला, वहां पर ये सिलाएं रखी गई थी और उसी के ऊपर इन्होंने निशाना साधा है। और उनका ये कहना है कि जब वो सिलाएं वहां पड़ी थी तब वहां पर कुत्ते उस पे पेशाब करते थे और लोगों ने ये देखा है, गांव के अलग अलग जगहों पे ऐसी सिलाएं रखी गई थी तो वहां पर कुत्ते पेशाब कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने वीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी तीनों पे ये निशाना जो है उन्होंने साधा है। Right, there could definitely have been better ways of taking a dig politically at a political opponent without bringing the faith and astha of Hindus into that commentary. Thank you, Amit, for joining us. One hopes that the party takes note of such outrageous statements being made by their very, very senior leaders.